Okay, so welcome everyone to this video in which I'm talking about Introduction to Material Development in Mathematics, which is also known as MD Math Practicum. It is a practicum of 75 marks and is done in DLED third year. So what is all about in this practicum? We're going to talk about it, and I must tell you that it is a part of a practicum called CMMD. So let me go to the next slide where I can tell you what is this practicum MD Mathematics all about. So if you can see here, I have written CMMD, which is Classroom Management and Material Development. The C stands for Classroom Management and Material Development. Now if you look at this picture, the first part I have shared here, if you can see it, this is called CMMD, and this CMMD is of 150 marks. If you all can see this, yeah, let me share with you. Yeah, the CMMD is of 150 marks. You all can see here. Now the CMMD is further divided. There is a division of marks into two parts, CM and MD. CM is classroom management, which is of 75 marks, and MD is of again 75 marks. Now MD is material development, which we are going to talk about. So now in this material development, if you see, this is further divided into three parts: MD EVS, MD mathematics, and MD language. Each component carries 25 marks. So that means material development is a part of CMMD practicum, which is worth 150 marks, and MD out of it carries 75 marks. So now 25 marks in these three components are taught by three different teachers who are experts in the particular area of sciences, mathematics and language. They will further divide it into 20 plus 5. If you all can see here on this conceptual map, you can see here material development and textbook analysis. That means we will develop low cost material, how to teach students in the school using a low cost material, that is called material development. And textbook analysis, the task of these two tasks will carry 20 marks, and lesson planning will carry 5 marks. So 20 plus 5, 25 marks. Each for EVS, math and language will make it 75 marks. Right? So now let me tell you how we go about this in MD mathematics particularly. So now this is the outline of the paper. If you all can see here, this is the outline of the paper. Maximum 25 marks, 20 marks for material development, 5 marks for lesson planning, and we give 2 periods per batch. So for this, the entire class is divided into 2 batches. 2 batches will work on the same line. There will be no discrimination. 20 marks, particularly in mathematics, will be divided under 3 tasks. If you can see this is the place value kit, 7 marks, textbook analysis, which is a group task, 6 marks, and fraction kit, which is of 7 marks, which is again a pair task. अब जब आप लोग इसके नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि क्या चीज़ है, कैसे बनाएंगे, क्या कोई किट्स बनानी है? बिल्कुल किट्स बनानी है, रिसोर्स बनाना है मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। प्राइमरी स्कूल में और एलिमेंट्री स्कूल में मटेरियल चाहिए, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ कराने के लिए TLMs चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए। उन सब में ये मटेरियल डेवलपमेंट का पेपर हमें हेल्प करता है। सो जब हम क्लासरूम टीचिंग में जाएंगे, उससे पहले हमें तैयार होना पड़ेगा क्लासरूम टीचिंग के लिए। अब इस क्लासरूम टीचिंग के लिए अगर हमें तैयार होना है तो उसके लिए हमें मटेरियल डेवलप करना पड़ेगा। सो थर्ड ईयर में पहली बार आप लोग रियल लाइफ सिचुएशन में क्लासरूम्स में जाएंगे और पढ़ाएंगे, और उसके लिए आपको हम पहले 6-7 महीने तैयार करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आप मटेरियल डेवलप करें ताकि आप उस मटेरियल से बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, तो अब ये मटेरियल डेवलप कैसे करना है उसकी बात करते हैं ताकि आप बच्चों को उसमें पढ़ा सकें।
नाउ सबसे पहले इस प्रैक्टिकम को समझने के लिए, मटेरियल डेवलप करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या क्या साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं जो हमें हेल्प करेंगी मटेरियल डेवलप करने में। तो एक LME का पेपर मैंने आपसे पहले डिस्कस करा था, वो LME का जो पेपर है वहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। उन थ्योरीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मटेरियल डेवलप करेंगे, ऐसा मटेरियल जो बच्चों को पसंद आए और बच्चों को जिनके साथ काम करने में मजा आए और टीचिंग लर्निंग भी फैसिलिटेट हो। तो सबसे पहले हम अपना ग्राउंड वर्क स्ट्रॉन्ग रखेंगे। वी विल स्टार्ट विद पोजीशन पेपर ऑन मैथमेटिक्स विच इज NCF 2005 में जो पोजीशन पेपर है मैथमेटिक्स का, जो बात करता है कि प्राइमरी टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट बुक्स में क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या क्या चैप्टर्स होने चाहिए, ज्योमेट्री होनी चाहिए, अरिथमेटिक होना चाहिए, फ्रैक्शंस होनी चाहिए। पोजीशन पेपर सब कुछ डिस्कस करता है, प्लस उसके बिहाइंड रैशनल देता है। तो वी विल स्टार्ट MD प्रैक्टिकम विद द डिस्कशन ऑन पोजीशन पेपर। फिर हम NCERT की 5वीं कक्षा की किताबों को देखेंगे जिसका नाम है गणित का जादू या मैथ मैजिक। वी विल लुक एट NCERT टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम क्लासेस 1 to 5 and we will review its content. We review the content on various bases. The basis can be gender, culture, religion, content, nature of activities, open-ended questions, closed-ended questions, lot of things. We will critically look at the textbooks. We will revisit the content of primary mathematics. ठीक है, कंटेंट को देखेंगे। क्लास 1 में काउंटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं 1 से 50 तक, क्लास 2 में 50 से आगे काउंटिंग लेके जाई जाती है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ आता है। तो हमारे को एक सीक्वेंस बांधना पड़ेगा कि हमने कहाँ से शुरू करा है क्लास 1 में और क्लास 5 तक हम कहाँ तक गए हैं, वो सीक्वेंस समझना पड़ेगा। इसके लिए हम पूरी क्लास को पूरे 2 ग्रुप्स में तो बांटा है पहले हमने, अब हम उन 2 ग्रुप्स को भी और 4-5 छोटे छोटे समूहों में ग्रुप्स में बांट देंगे और फिर हमें 5 टेक्स्ट बुक्स का एक तरह से रिव्यू करेंगे, क्रिटिकली इसको देखेंगे, एक आलोचनात्मक तरीके से इसका रिव्यू करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वी विल लुक एट लिंकिंग लर्निंग थ्योरीज विद कंटेंट। अब हमें लो कॉस्ट मटेरियल बनाना है तो हम कोशिश करेंगे पियाजे से हमने क्या सीखा, ब्रूनर से मैथमेटिक्स के बारे में क्या सीखा, उसको ध्यान में रखते हुए हम लो कॉस्ट मटेरियल बनाएंगे। हम छोटे छोटे ऐसे डेवलप करेंगे मटेरियल जो लो कॉस्ट होंगे और बच्चों को जिनको यूज करने में आसानी होगी, और अगर वो डैमेज भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होगा कि हमारा बहुत पैसा वेस्ट हो गया या ऐसा कुछ हुआ, हमें कोई दुख नहीं होगा कि बहुत लो कॉस्ट मटेरियल होगा और इजीली दोबारा बन भी सकता है अगर खराब हो जाए। यूजुअली खराब नहीं होता है क्योंकि हम स्टर्डी मटेरियल बनाते हैं। उसके बाद हम असेसमेंट के भी बहुत सारे टूल्स बनाएंगे। असेसमेंट कैसे करनी है, वर्कशीट्स कैसे बना सकते हैं, क्विज बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स बना सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हम लेसन प्लान्स में यूज करेंगे। ठीक है, थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट भी हम मैथमेटिक्स में क्रिएटिव वर्कशीट्स बना सकते हैं, हम कुछ प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को करने के लिए। और फाइनली अब हम क्या करेंगे, हम लेसन प्लान बनाएंगे। ये लेसन प्लान जब हम बनाना सीख लेंगे, ये टॉपिक हम लेसन प्लानिंग का दिसंबर एंड से स्टार्ट करते हैं, एंड ऑफ दिसंबर से वी स्टार्टेड एंड जनवरी फरवरी में वी सेंड यू टू स्कूल्स टू ट्रांजैक्ट दीज प्लान्स, राइट। तो इसकी फाउंडेशन 8वें स्टेप तक पहुंचने के लिए हमें पहले 7 स्टेप से गुजरना पड़ेगा जो हम दिसंबर तक कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जनवरी से हम आपको तैयार कर देते हैं कि आप फाइनली लेसन प्लान बनाएं और स्कूल में जाने के लिए तैयार हो आप, और इसी चीज को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने फाइनल 4th ईयर में। यही स्टेप्स जो आपने सीखे हैं, अब 4th ईयर में तो इतने डिटेल में नहीं समझाएगा कोई, तो 3rd ईयर में सीख कर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे और 4th ईयर में उसको पूरा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप इस वीडियो के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाएगा अब आपको। ओके, थैंक यू।